Hello, everybody. Today we have a very special guest with us, Mr. Itizaz Hakim. Itizaz Hakim Sahab is a head of department in three different divisions. Currently, is heading marketing, retail, development, and logistics. So, without further ado, I will hand over the platform to Mr. Itizaz Hakim, and I would request him to give his introduction regarding his journey or a little bit about his education as well. So over to you, sir. Assalamu alaikum, and thank you for giving your time to us, sir. Walaikum Assalam. Thank you so much for having me, Asad. And it's a great initiative. I really appreciate it that you are doing such a good thing for the newcomers and the students and the people who are coming into the professional field. I did my bachelor's in computer sciences from ILM that was affiliated with Hamdard University in 2001. And after doing my bachelor's, I joined Supernet Private Limited, that was in ISP. And in the evening time, I joined classes of MBA executive. And I did my MBA executive from UMT because ILM was given the status of University of Management Technology. After 1.5 years, I moved to WorldCall as customer care coordinator. And after completing my MBA, I was fortunate enough to get an opportunity in Total Park of Pakistan Limited. I started my career over there in communication and merchandising department. Communication was the marketing department, and merchandising was the department which was looking after the retail Petromart business of Total Parko. I had the privilege of working with very good bosses and having a growth spectrum of switching 5 jobs in Total Parko. And my last assignment was of consumer sales. I was looking after consumer sales, industrial sales in Islamabad. In Total Parko, I get to work in retail development, retail sales, training, and merchandising and communications department. After after start my journey with Total Parko, I joined ZIC. ZIC Oil High Tech Lubricants is a renowned brand, and High Tech Lubricants is the sole distributor of ZIC Oil in Pakistan from 93. In 2016, they started a venture. They took provisional license of OMC, and they started their OMC wing, and I was the first employee of that. At the moment, we have 38 fuel stations operating in KPK and Punjab. We have 3 depots. One depot is under construction in Shikarpur, one depot is in Saibal, which is operational, and one depot is in KPK, which is operational as well. So I'm looking after retail sales and network planning of Zik Oil High Tech Lubricants Limited OMC wing. चले That's my माशाल्लाह introduction. माशाल्लाह सर, ग्रेट इंट्रोडक्शन, ग्रेट एक्सपीरियंस. बस एक चीज सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग योर ट्रांजिशन फ्रॉम ए टेक्निकल डिग्री टू एमबीए. इसके पीछे क्या वजह है सर? The key to moving from technical to management degree is diversification. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, तो व्हेन यू डाइवर्सिफाई, तो डाइवर्सिफाई करने से आप वैल्यू एडिंग कर रहे होते हैं. द मोर यू हैव एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, द मोर वैल्यूएबल यू बिकम फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल एंड फॉर योर सेल्फ एज वेल. तो जब मैं बैचलर्स कर रहा था, तो बैचलर्स के दौरान ही हमारे कुछ कोर्सेज थे मैनेजमेंट के, और मैनेजमेंट के कोर्सेज में हमारे जो सीनियर्स थे उनको इनवाइट किया जाता था कि आप इवेल्युएट करें और जूनियर्स को कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग. तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, उन सीनियर्स ने मुझे मशवरा दिया कि यू आर वेरी गुड एट टॉकिंग, यू आर वेरी गुड एट प्रेजेंटेशन. तो वो कह रहे थे कि जी डेस्क जॉब, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज डेस्क जॉब, यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर के तुम सेल्स की तरफ या तुम मार्केटिंग की तरफ आओ, क्योंकि ये तुम्हारी फील्ड है. यू आर वेरी गुड एट प्रेजेंटेशन और यू विल बी गुड एडिशन एंड यू विल प्रूव टू बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड एज वेल. तो दिस इज व्हाट मेड मी थिंक कि जी मुझे अब इसको डाइवर्सिफाई करके एमबीए की डिग्री हो जाना चाहिए. मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो बेसिकली ये था कंप्यूटर साइंसेस थी, इसमें हमारे जो बेसिकली मैनेजमेंट के कोर्सेज थे वो बहुत कम थे. लेकिन जो हमारे मैनेजमेंट के कोर्सेज होते थे ना, उसमें जो फाइनल प्रेजेंटेशंस होती थी और प्रोजेक्ट्स होते थे, वाइवाज होते थे, उसमें सीनियर्स को इनवाइट किया जाता था कि वो भी इवेल्युएट करें आपको. तो आई हैड अ कपल ऑफ सीनियर्स जो वहीं पे बेसिकली एमबीए में थे, और उसके बाद खैर उनके साथ मैंने काम भी किया. यानी कि टोटल में आपको याद होगा, आप भी टोटल में हो, तो वो मोहम्मद सदीक थे हमारे रीजनल मैनेजर लाहौर के. तो एग्जैक्टली. ही वाज एन एलुमनाई एज वेल, ही वाज फ्रॉम आईआईएम एज वेल. तो
उन्होंने जब वो प्रेजेंटेशंस देखी तो वो प्रेजेंटेशंस देख के उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि यार यू आर वेरी गुड एट स्पीकिंग, यू आर वेरी गुड विद सेल्स, और यू कैन बी अ वेरी गुड एडिशन, यानी कि आप यू कैन बी अ वेरी गुड एंटिटी एज फार एज सेल्स एंड नेगोशिएशन, एंड यू हैव अ वे विद कस्टमर्स। तो क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो है दैट इज बेसिकली अ डेस्क जॉब, तो तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम इस चीज को जरा एक्सप्लोर करो, क्योंकि यू आर गुड एट टॉकिंग, यू आर गुड एट निगोशिएशंस, और तुम्हारी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो भी अच्छी हैं। तो व्हाई नॉट गो फॉर दिस फील्ड कि आप अपना सेल्स के अंदर जो है ना वो ग्रो करो। दूसरा, एक जो चीज मैंने देखी है, वो देखी तो मैंने अब है, लेकिन खैर ये सीनियर्स ने उस वक्त भी बताया था कि आप देखो कि जितने भी सीईओज हैं या एमडीज होते हैं, 60 to 70% ऑफ दोज एमडीज एंड सीईओज हैव अ बैकग्राउंड ऑफ सेल्स। क्योंकि सेल्स में ये होता है कि सेल्स में आपको इतनी वो, आप कह लें कि जी आपको इतना वो रिगरस आपको एक्सपीरियंस मिलता है हर चीज का, कि आप फील्ड में भी होते हो, आप गर्मी है, सर्दी है, धूप है, आपको हर किस्म का बंदा मिल रहा है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आप रिटेल की बात करते हैं, फिर टॉकिंग अबाउट पेट्रोल पंप्स, या अगर हम एफएमसीजी की बात करते हैं, आपकी स्मॉल टियर बिजनेसेस हैं, आपके हाई स्ट्रीट है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, आपकी शॉप्स हैं, स्मॉल शॉप्स हैं, बिगर मार्ट्स हैं, तो वहां पे हर जगह जो है आपका एक बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। तो जो शख्स भी उस कट थ्रोट कंपटीशन से निकल के बाहर आता है ना, तो वो सारे बर्न्स ले चुका होता है। तो जब आप मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे जाते हैं ना, तो यू हैव हैड इनफ एक्सपोजर कि आपको पता होता है कि जी कि ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है, मिड मैनेजमेंट लेवल पे क्या हो रहा है, और हाई मैनेजमेंट लेवल पे क्या हो रहा है। तो सेल्स में हमेशा आपको जो है ना वो एक्सपोजर इतना अच्छा मिल जाता है कि यू बिकम वेरी गुड एट थिंग्स, आपकी एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर वही लोग जो हैं वो फिर मूव करते हैं टू द एमडीज एंड सीईओज पोजीशंस। तो ये चीज भी होती है, लेकिन इसमें एक और चीज ये भी देखने वाली होती है कि आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। मैं हमेशा अपनी टीम से ये कहता हूँ, मेरे नीचे टीम है रिटेल सेल्स की, डेवलपमेंट की, आई हैव गॉट मैनेजर्स, आई हैव गॉट असिस्टेंट मैनेजर्स, आई हैव गॉट ऑफिसर्स। मैं सिर्फ उनसे यही बात करता हूँ, मैं उनसे ये कहता हूँ कि जी फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम करें, और अगर आपने रिटेल करनी है, इफ यू वांट टू मेक अ कैरियर आउट ऑफ इट, यू हैव टू लिव इट। लिमिट में ये होता है कि आप भी माशाल्लाह, आपने भी खुद रिटेल सेल्स को देखा हुआ है, फ्यू स्टेशंस की रिटेल सेल्स को देखा हुआ है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एफएमसीजीज की बात करते हैं, तो दिस इज अ 24/7 जॉब। 24/7 जॉब का मतलब ये है कि यू गॉट नो हॉलीडे, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। आपके टारगेट्स होते हैं, हर गुजरते दिन के साथ आपका टारगेट जो है वो डिप्लीट हो रहा होता है। डिप्लीट होने का मतलब ये है कि इफ यू आर कवरिंग योर टारगेट्स, अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो यू गुड विद इट, लेकिन एक एवरी पासिंग डे जो है उसमें आपका टारगेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो आप यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो अगर तो आप इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं तो यूर वेलकम, लेकिन अगर आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, देन यू हैव टू सी कि व्हाट यू हैव टू डू। क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस आसान नहीं होता। आप अगर आप बिजनेस करना शुरू करें तो बिजनेस करना इससे भी मुश्किल होता है, क्योंकि बिजनेस करने का मतलब ये है कि आपका जो कस्टमर है उसकी जेब में 100 रुपीज पड़ा हुआ है, और उस 100 रुपीज को हंट कर रहे हैं आपकी तरह के और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारी कंपनीज। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जी आपने किस तरह उनको बेसिकली उस 100 रुपीज को हंट करना है, थ्रू योर एबिलिटीज, या आप क्या उसको ऑफर करते हैं कस्टमर को, या क्या आप उसको सेल्स पिच देते हैं कि वो आपकी तरफ आ जाए। दैट्स अबाउट इट। नहीं नहीं सर, ग्रेट इंसाइट के जो है ये बिल्कुल सही है कि सेल्स में प्रेशर, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा। जो हम लोग जिस उसके हैं, जिस टाइम के हैं, वी यूज टू स्टिक टू अ सर्टेन जॉब फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि लर्निंग फेज होता था। आपने भी माशाल्लाह से यू स्पेंड अबाउट 12 years अराउंड इन टोटल, और उस 12 years ने हम्म। आपका प्लेटफॉर्म बनाया टू वेयर यू आर नाउ। मतलब आपको, आपने जैसे हम्म। स्टार्ट किया मर्चेंडाइजिंग से, फिर आपने कहा मैंने मार्केटिंग भी करी, फिर मैं सेल्स में आया, फिर मैं कंज्यूमर में आया, तो इसने पूरा ग्राउंड बनाया। जो आजकल का लड़का है, प्रेशर तो हटा दें, मतलब वो उसका आइडिया है कि 2 साल से ज्यादा मैंने एक जगह पे स्टिक नहीं करना और आगे मूव कर जाना है फॉर ए सैलरी जंप। तो इससे उसका पोर्टफोलियो डेवलप हो रहा होता है, लेकिन लॉन्गर रन में आई डोंट थिंक कि वो फिर इतना ग्रो कर पाता है जैसे आप लोग ग्रो किए हैं। इसमें कोई हकीकत है, या आप क्या एडवाइस करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो कंटिन्यूअसली जंप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप एक सर्टेन लेवल पे आके रुक जाते हो, क्योंकि आप एक जगह से प्रॉपर लर्निंग नहीं लेते, फिर दूसरी जगह जंप करते हो, वहां से भी आप लेट सपोज 20-30% ग्रैब्स करते हो, फिर आप तीसरी पोजीशन पे चले जाते हो।
तो ये ज्यादा अच्छा है, या कि एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक करके पूरी मार्केट को, पूरे इंडस्ट्री को समझना और फिर उस एक्सपीरियंस को लेवरेज करना कि वो दूसरी इंडस्ट्रीज में जो है वो आपके काम आ सके? तो कौन सी आपके ख्याल में जो है वो लेवल ऑफ या आइडियोलॉजी अच्छी है? मेरे ना बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं। ही इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन एज वेल, ही इज चलो माइनिंग माशाल्लाह। इंजीनियर। उन्होंने भी एमबीए किया था बाद में। ही इज इन इंग्लैंड नाउ। तो माशाल्लाह मुझसे माशाल्लाह। 10 साल बड़े हैं। आई लुक अप टू हिम। वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी पहले 6 से 7 साल, आपने ना 6 to 7 years, यू जस्ट हैव टू सी द ब्रांड फॉर विच यू आर वर्किंग विद। आपने एक ब्रांड पकड़ना है और उस ब्रांड के साथ आपने काम करना है, रिगार्डलेस कि वो आपको क्या पे कर रहे हैं। क्योंकि मॉनेटरी जितनी भी आपकी है, आप कह लो कि जी आप तनख्वाह की बात करते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू गेन एक्सपीरियंस। अगर आपने एक ब्रांड के साथ काम करके एक्सपीरियंस गेन कर लिया है और आपने अपनी वर्थ प्रूफ कर दी है, तो वो ब्रांड ही आपको पे आउट करना शुरू कर देता है। जिस तरह मैं आपको टोटल की एग्जांपल देता हूँ कि टोटल में ही आई हैड अराउंड 5 जॉब स्विचेस इन 12 years। 5 to 6, आई थिंक 5 to 6 थे मेरे जॉब स्विचेस। वो जॉब स्विचेस का एक्चुअली मकसद ही ये होता है कि आप जब भी आप परफॉर्म कर रहे होते हो, तो परफॉर्म करने के बाद आपको एक ऑप्शन दी जाती है कि यू हेड स्टार्ट ऑन अ डिफरेंट लेवल। और वहां से आपको एक्सपोजर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी ही देख रही होती है। तो वर्किंग विद अ गुड ब्रांड, जब आप एक अच्छे ब्रांड के साथ काम कर रहे हो तो ब्रांड खुद आपको जो है वो ग्रो कर रहा होता है। क्योंकि उनको भी पता होता है कि हम एक एंटिटी को, एक रिसोर्स को ग्रो करेंगे, तो ही विल प्रूव टू बी अ वाइटल एंटिटी फॉर अस इन द फ्यूचर। तो आपने, आजकल के जो लड़के हैं वो, मैंने बिल्कुल ये चीज देखी है कि जी साल, 1.5 साल, 2 साल, और विद फर्दर एड्यू मैंने देखा है कि जो आपके इस वक्त जो बिल्कुल रिनाउंड आपके जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके लड़के सबसे ज्यादा ये काम कर रहे हैं। आई वोंट नेम इट क्योंकि वो फिर नाम आ जाएगा, लेकिन ये है कि आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं इस वक्त, वो साल, 1.5 साल एक जगह पे काम करते हैं और उसके बाद वहां से मूव कर जाते हैं। उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है कि आपको इंस्टेबिलिटी रहती है। इंस्टेबिलिटी में ये है कि आपको पहले 6 महीने तो सिर्फ कल्चर समझने में लग जाते हैं। व्हाट इज अ कल्चर? कल्चर में क्या होता है? कल्चर में होता है कि जी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपसे चाहती क्या है, किस तरह काम कर रही है, उनके टारगेट्स क्या हैं, हाउ दे वर्क। और वो अपने आप को आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, और आज से 5 साल, 10 साल पहले जब भी वो कंपनी डेवलप हुई थी, वो कहाँ खड़ी हुई थी। आपको सिर्फ 6 महीने ही चीजें समझने में लग जाते हैं। तो आपने अगर 6 महीने इसमें लगा दिए और उसके बाद 6 महीने जो है वो आप अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, और आफ्टर ईयर अगर आप जॉब स्विच कर लेते हैं, तो आपने क्या चीज वहां से सीखी? आपने वहां से कुछ भी नहीं सीखा, बल्कि उसने आपको डिस्टर्ब किया। आपके कैरियर पाथ को डिस्टर्ब इस तरह किया है कि आपने वहां पे जाके उनके साथ आप मूव हुए, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स अलाइन किए। अभी आप अलाइन करने के बाद चीजें सीख ही रहे थे, तो आपने वहां से स्विच कर लिया। मैं ये चीज नहीं कहता कि जी हर कंपनी में जो है वो 100% परफेक्शन होती है, या बिल्कुल परफेक्शन नहीं होती। देर आर सम प्रोज एंड कॉन्स। हर जगह कुछ बेहतरी होती है, कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको हम इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस कहते हैं, कि जी हम इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस जो है उनको हम लेके आए अपनी कंपनी के अंदर। तो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस होती हैं, हर कंपनी कुछ ना कुछ ऐसा कर रही होती है विच कैन बी अ रोल मॉडल और विच कैन बी एन इंडस्ट्री प्रैक्टिस फॉर अस टू फॉलो। लेकिन हम वो सीखने से पहले ही हम अपना जो है वो करियर पाथ स्विच कर लेते हैं। जहां तक मॉनेटरी टर्म्स की बात है, मॉनेटरी टर्म्स में जब आप कंपनी को फायदा देते हैं तो कंपनी खुद इस चीज को देख रही होती है कि जी दिस पर्सन इज वाइटल फॉर अस, ही इज ब्रिंगिंग इन सेल्स। अगर हम सेल्स की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी सेल्स लेके आ रहा है। जब सेल्स लेके आते हैं तो डेफिनेटली, देखिए मेरा एक लड़का है, अगर वो, मेरा एक टीम मेंबर है, अगर वो सेल्स कर रहा है, तो मेरे पास अगर कोई सीनियर पोजीशन आएगी तो मैं डेफिनेटली मैं ये चाहूंगा कि जी वो उस पोजीशन के ऊपर प्रमोट हो जाए। जब वो प्रमोट होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आते हैं, उसके अंदर बाकी भी चीजें आती हैं। लेकिन हम इस चीज को नहीं देखते हैं। हम कहते हैं कि जी हमें जो है ना वो जरा शॉर्ट टर्म जंप्स मिल जाए, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। दैट्स अबाउट अच्छा, इट। एक चीज और है, वो बड़ी एक चल रही है, पीपल डोंट लीव जॉब्स, पीपल लीव बैड बॉसेस, जो ये यंगस्टर्स में है। तो अब मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक इंडस्ट्री में गए हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो जो है आप उस बॉस को सरवाइव करके उस इंडस्ट्री को लर्न करो। या इज इट राइट कि आपको जो है मतलब बॉस बुरा मिला, आपने 6-7 महीने तो बर्दाश्त किया, लेकिन आपने जॉब स्विच करने की तरफ मूव करना शुरू कर दिया?
या आप उस मोड को सरवाइव करो और जो है वो शाइन करो, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनमें कंटिन्यूसली जो है वो स्विचेस और चेंजेस हो रहे होते हैं। तो क्या है, बेहतर है कि आप इंतजार करो, इस मोड को गुजारो। अगर आपकी अलाइनमेंट नहीं हो सकी अपने बॉस के साथ तो आप स्विचिंग की तरफ चले जाओ, या आप उस मोड को सरवाइव करो और उसको जो है शाइन करने की कोशिश करो उस मोड में। मैं इसमें ना मैं आपको मतलब मैं सारों को यही कहता हूँ, लाइक अपने जूनियर्स को भी अपने पीयर्स को भी देखें, लाइफ है ना, लाइफ आपके मुताबिक नहीं चलती, आपने लाइफ के मुताबिक चलना। एग्जैक्टली। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कि आपने लाइफ के मुताबिक चलना है, लाइफ कभी भी आपके मुताबिक नहीं चलेगी। इवन इवन इफ यू टॉक अबाउट मिलियनर्स और बिलियनर्स, ठीक है, अगर हम टॉप नॉच जो आपके यानी कि द रिचेस्ट पीपल हैं, हम अगर अमेजोन जेफ बेजोस की बात करते हैं, एलन मस्क की बात करते हैं, तो डू यू थिंक एवरीथिंग इज कंड्यूसिव फॉर देम? आई डोंट थिंक सो कि एवरीथिंग बिल्कुल इज ऐसे। कंड्यूसिव फॉर देम। एवरी हर लाइफ में हर चीज में चैलेंज होता है आपके लिए। ठीक है, गुड बॉस से ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल में बैड बॉस होता है, क्योंकि बैड बॉस जो है वो आपको ही कीप्स यू ऑन योर टोज। ठीक है, एंड ही ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू। मैं इस चीज में बिल्कुल भी इस चीज को इनकरेज नहीं करता कि आप जो है वो फाउल माउथिंग माउथिंग करें, यानी कि आपको बैड वर्ड्स बोलें, आपकी लैंग्वेज ठीक ना हो, ठीक है ना, हरेसमेंट नहीं होनी चाहिए और मेंटल टॉर्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी चीजें होती हैं। लेकिन ये है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टारगेट्स, इफ यू आर वर्किंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं आपके वो उसके फॉर्मल अंदर वाली आपको चार हर चीजों की चीज है बात वो। कर रहा था। जो फॉर्मल चार चीजें सॉरी। आपने मेंशन, जो बैड बॉसेस की डेफिनेशन है ना, वो आपने जो फॉर्मली चार चीजें बोली ना, हेरेसमेंट, फाउल माउथिंग, बिल्कुल मैं उसके बिल्कुल। रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। हाँ। वो तो ऑब्वियसली अगर किसी को अच्छा बॉस जो आपको अंदर से आपका वो जगाता है पोटेंशियल, तो दैट इज अ गुड बॉस। तो प्रेशर देता है, दैट इज अ गुड बॉस। हम्म। लेकिन जो आपके साथ माइक्रो मैनेज कर रहा है, फाउल माउथिंग कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है, उस बॉसेस को जो है वो किस तरीके से टैकल किया जाए, मतलब टाइम गुजारा जाए, या छोड़ने की तरफ जाया जाए, या अपने ऊपर जो बॉसेस हैं उनसे जो है उसकी बात की जाए कि जो है मेरी इससे अलाइनमेंट नहीं आ रही, आई शुड बी मूव टू अनदर पोजीशन और अ जॉब। तो उनके हवाले से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मैं मेरा ख्याल ये है कि यू शुड हैव वन टू वन मीटिंग, यू शुड हैव वन टू वन मीटिंग विद हिम। अगर आपके बॉस के आपके सब प्रॉब्लम्स हैं, आप बैठे आप बात करें, क्योंकि सोल्यूशन टू एवरीथिंग इज टू टॉक। ठीक है, उसमें चीज ये होती है कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस होते हैं जिंदगी में, ठीक है, और बहुत सारी मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन हमारा जो एक जनरल पर्सपेक्टिव होता है ना, वही पर्सपेक्टिव ये होता है कि हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कि यार स्लीप ओवर इट, या ये चीज गुजर जाएगी, या चलो देख लेंगे बाद में। ये जो चीज होती है ना कि ये चीज गुजर जाएगी, या हम वेट कर लेते हैं, या हम देख लेते हैं, या खुद ही न्यूट्रलाइज हो जाएगी, सिचुएशंस कभी भी न्यूट्रलाइज नहीं होती। देखें, चीज ये होती है कि सेल्स किस वक्त होती है, सेल्स उस वक्त होती है जब आप क्लाइंट के दरवाजे पे जाके उसका दरवाजा खटखटाते हैं। एट टाइम्स ये भी होता है कि क्लाइंट आपको आपकी शॉप पे नहीं मिलता, आपको उसके घर जाना पड़ जाता है, आपसे घर भी चले जाते हैं। तो दैट इज योर विल टू वर्क, कि आप कहते हैं कि यार ये मेरी विल है। उसी विल के तहत अगर आपके अपने बॉस के साथ कोई डिफरेंसेस हैं, तो यू शुड सिट विद हिम एंड शुड टॉक टू हिम कि जी व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई डू इट, एंड हाउ डू यू वांट मी टू डू इट, कि आप किस तरह चाहते हैं कि मैं आपको ये काम करके दूं। ठीक है, उसमें जो चैलेंजेस होते हैं, जिस तरह टाइमलाइन का कोई चैलेंज है कि जी आपके पास मल्टीपल असाइनमेंट्स हैं, और मल्टीपल असाइनमेंट्स में यू कैन ऑलवेज डिवाइस कि जी इनमें आप मुझे बता दीजिए कि विच असाइनमेंट इज ऑफ मोस्ट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, वो मैं पहले कर देता हूँ और बाकी मैं बाद में कर देता हूँ। अगर आपका बॉस जो है वो आपको 7 to 8 असाइनमेंट्स दे देता है, और आपको जो डेडलाइन है वो 1 दिन की या 1.5 दिन की देता है, तो यू हैव टू टॉक टू हिम कि जी बात ये है कि आई एम अ ह्यूमन एज वेल, ठीक है ना, मेरा भी एक वर्क लाइफ बैलेंस है। उस वर्क लाइफ बैलेंस के मुताबिक आई हैव टू वर्क फ्रॉम 9 to 5 और फ्रॉम 9 to 6, जो भी आपके टाइमिंग्स हैं। उस टाइम के बाद वो आपका फैमिली का टाइम है या वो आपका पर्सनल टाइम है, तो आइडियली आपका काम उसी में कंप्लीट होना चाहिए। तो यू शुड टॉक टू हिम कि जी आपके कौन कौन से क्रिटिकल असाइनमेंट्स हैं जिनको मैं पहले कर दूं, और जो असाइनमेंट जो हैं वो मैं बाद में हो सकती हूँ मैं बाद में कर दूं। और मुझे आप ये बताइए कि हाउ टू डू इट, ताकि ये है कि आपकी और मेरी अलाइनमेंट होगी तो डिपार्टमेंट जो है वो परफॉर्म करेगा। डिपार्टमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो कंपनी परफॉर्म करती है। बट यू हैव टू सिट। हम यही करते हैं, हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने का फायदा कोई नहीं होता, यू हैव टू सिट। इन चीजों को आपको देखना पड़ता है और आपको बात करनी पड़ती है।
द ग्रेट एडवाइस, वी शुड लर्न टू टैकल द प्रॉब्लम फर्स्ट हैंड। ये बेहतरीन एडवाइस है कि आप बात करें, जितनी बात करेंगे उतना कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम होंगे, उतनी क्लैरिटी आएगी। अच्छा सर, माशाल्लाह से यू आर हेडिंग 3 डिपार्टमेंट्स, आपके पास टीम भी बड़ी है, तो उसमें यंगस्टर्स भी होंगे, ओल्ड टाइमर्स भी होंगे, जो अरसे से उनके पास एक सर्टेन एक्सपीरियंस है। तो उसमें जो आपके पास एक पूरी लॉट होती है, ऑब्वियसली दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। तो आप अपनी पूरी टीम में से किस तरीके से देखते हैं कि दीज आर द डायमंड्स और दीज आर द जो है पीपल हु विल कीप वर्किंग, उनको जो है मतलब मैंने इसी काम पे लगा के रखना है, दे विल डू गुड ऑन दिस वर्क, लेकिन मैं इनको ऊपर लेकर आता हूँ तो दे माइट नॉट परफॉर्म टू द मार्क दैट आई वांट। तो ऑब्वियसली आपने जो मशीन है उसमें हर स्क्रू का एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, रोल होता है। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि यार ये आउटशाइनर है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, ये जो है इसी पोजीशन पे ही अच्छा काम कर रहा है, इसको अभी मैं फिलहाल इसी पे चलाता हूँ। तो ये किस तरीके से आप जो है वो लड़का अगर कोई आता है तो किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करे टू मूव फॉरवर्ड, मतलब फॉर अ यंग प्रोफेशनल जिसने एंटर किया मार्केट, हु हैज बीन 2 इयर्स और 3 इयर्स इन द मार्केट, वो कैसे आपके सामने आउटशाइन करेगा कि यार हाँ यार ही इज अ गुड पर्सन टू मतलब मेक माई कंपनी और मेक द प्रोग्रेस दैट आई वांट, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करते इसमें इसका एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है मेरी बुक्स में। आई डोंट नो अबाउट अदर मैनेजर्स, या आप कह रहे हो कि जी अदर जो सीनियर रिसोर्सेज हैं, मेरे पास एक बहुत है, दैट इज ओनरशिप। व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर वर्क, तो खुद ब खुद काम भी होना शुरू हो जाते हैं। व्हेन यू टेकिंग पेन, और आपकी मैनेजमेंट को पता होता है कि जी हु इज टेकिंग ओनरशिप एंड हु इज नॉट टेकिंग ओनरशिप। आप अपनी ही टीम की अगर मैं बात करूं, तो अपनी ही टीम में, मेरी टीम में ये है कि अगर मैं रीजन्स की मैं बात करता हूँ, देयर इज अ रीजन A B C D। तो जब भी कोई कैटेस्ट्रॉफिक कोई कंडीशन आती है या कोई मसला आता है, तो मुझे पता होता है कि जी रीजन A और रीजन C जो है, उसको मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन रीजन B को मुझे देखने की जरूरत है। और रीजन D तो मुझे पक्का यकीन होता है कि जी रीजन D से जो है ना, वो मुझे पता चलेगा कोई ना कोई लास्ट मोमेंट पे ना कोई प्रॉब्लम आनी है, या उन्होंने जो है ना वो अपने हाथ खड़े कर देने हैं। तो आपको आइडिया होता है इस चीज का कि जी आपने कि कौन कौन सा आपका रीजन है, वो कौन कौन सा परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन अपनी ओनरशिप ले रहा है काम की। ओनरशिप किस तरह ली जाती है काम की? ओनरशिप इस तरह ली जाती है कि जब आप प्लानिंग करते हैं चीजों की, प्लानिंग करने का मतलब ये होता है कि आप एक बनाते हैं प्लान ए। प्लान ए का मतलब क्या होता है कि जी अगर ये चीज हो जाती है तो मेरा ये प्लान है ए है। अगर ये कोई मसला हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, अगर वो प्लान ए नहीं ओके होता, तो फिर प्लान बी क्या है? प्लान बी भी ओके नहीं होता, तो प्लान सी क्या है? तो देर आर पीपल हु मेक थ्री थ्री प्लान्स ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने बैकअप्स रखे होते हैं। जब आपने बैकअप रखा होता है ना, और आपने प्लान किया होता है, तो खुद ब खुद आपके काम हो जाते हैं। तो हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ये चीज जो दैट इज वेरी गुड, प्लान ए प्लान बी प्लान सी, मतलब बैकअप प्लान्स हो, ये आप यंगस्टर्स में ज्यादा देखते हैं या मिडिल जो एज पर्सन अराउंड 35 to 45 में ये ज्यादा देखते हैं? मतलब एक होता है कि लिविंग द मोमेंट, वो जो ये है कि यार जब पड़ेगी देखा जाएगा, और एक होते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर में चल रहे होते हैं, तो ये चीज आप किस में ज्यादा देखते हैं अपने उसमें टीम में? मतलब यंग पीपल में ये ज्यादा है कि बैकअप प्लान है, या थोड़े से जो सीजन लोग हैं वो बैकअप प्लान पे चल रहे होते हैं? नहीं, यंग लोगों में ये चीज ज्यादा होती है। यंग लोगों में चीजें इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जो 35 to 40 से पहुंच चुके होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं ना, तो दे आर मूविंग इन द सेम सर्कल। तो वो जब सेम सर्कल में मूव कर रहे होते हैं ना, तो फिर उसके बाद आपकी जो जो सोच का क्वांटम है ना, आपकी थिंकिंग क्वांटम, वो भी लिमिट लिमिट होना शुरू हो जाता है। लिमिटेड का मतलब ये है कि आप उसी एक क्वांटम के अंदर सोच रहे होते हैं कि जी मेरे क्या बैकअप्स हो सकते हैं, या मेरा क्या सोल्यूशन हो सकता है। जब यंगस्टर आता है ना, और यंगस्टर जो है वो एक्सपोजर लेता है आपकी पूरी कंपनी का, जी के फाइनेंस जो है वो किस तरह सपोर्ट कर सकता है, लॉजिस्टिक्स किस तरह सपोर्ट कर सकता है, आपकी जो सप्लाई चेन है, सोर्सिंग है, वो किस तरह सपोर्ट कर सकती है। तो एट टाइम्स बहुत सारे वियर्ड आइडियाज भी आते हैं, लेकिन उन वियर्ड आइडियाज में बहुत सारे वर्केबल आइडियाज भी होते हैं, जो हम कहते हैं कि हाँ यार ये चीज तो वर्केबल है, इस चीज को हम कर सकते हैं, या इस चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उन यंगस्टर्स जो हैं उनके अंदर ये चीज ज्यादा है, लेकिन यंगस्टर्स का जो इश्यू है वो ये है कि वो स्टेबल नहीं होते। उनके अंदर इंस्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिस तरह हमने सबसे पहले जो बात की थी कि दे आर ऑलवेज थिंकिंग है जी जितनी जल्दी मुझे कोई मूवमेंट मिल जाए तो मैं यहाँ से मूव कर जाऊं।
फिर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपको हार्डशिप बर्दाश्त करनी पड़ती है इन द बिगिनिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर कैरियर। तो कैरियर स्टार्ट करने के बाद आपने डेफिनेटली, ये चीज कभी भी नहीं होती कि आपको आपका होम टाउन में बेस किया जाए, या आपको जो है वो, अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं तो वो ब्रांच दे दी जाए जिसके प्रॉफिट जो है वो स्काई हाई हैं। तो हमेशा आपको जो मूव किया जाता है वो मूव वहां पे किया जाता है जहाँ पे आप लर्निंग करें। इसी तरह हमारी जिस तरह इंडस्ट्री वाले मार्केटिंग इंडस्ट्री, इसमें जब भी आपको हायर किया जाता है, हम जाइंट्स की बात करते हैं, हम अपनी नेशनल कंपनी की बात करते हैं, हायरिंग होती है तो हायरिंग के बाद आपको ये भी नहीं पता होता कि कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सा शहर है। तो वो चीज जो है ना, बेसिकली वो इंस्टेबिलिटी में आ जाती है कि जी उसको आप कितनी हद तक आप जो है वो कर्टेल कर सकते हैं और आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन उनके अंदर जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि इनोवेशन और थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये चीज ज्यादा होती है। जब आपको 10 साल, 8 साल, 6 साल आपको एक इंडस्ट्री में हो जाते हैं, तो आपका क्वांटम जो है वो भी लिमिट हो जाता है। यू मे बी गुड एट नंबर्स, यू मे बी गुड एट वेरी गुड विद द कस्टमर्स, कस्टमर के साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी है, कस्टमर्स आपको जानते हैं, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपका काम चल रहा है, आपको काम का भी पता है। लेकिन वो एक होता है ना कि आपके वो जो स्मॉल स्मॉल आपके वियर्ड किस्म के आइडियाज हैं, और वो वियर्ड किस्म के आइडियाज जो हैं वो वर्केबल हो के बंदा के यार ये भी हो सकता है। तो वो चीज जो है आपको यंगस्टर से मिलती है। तो आपका व्यू जो है वो मायोपिक हो जाता है, वो आपकी फोरसाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, आप आगे जो है एग्जैक्टली। वो कम से कम देख रहे होते हैं। तो ये दैट वाज गुड, मतलब अबाउट हाउ टू सर्वाइव इन द कंपनी, हाउ टू थ्राइव इन द कंपनी। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। एक यंगस्टर जो हु हैज रिसेंटली ग्रेजुएटेड या इज इन द ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या जिसमें भी है, तो उसके लिए आपका क्या एडवाइस होगा कि इंडस्ट्रीज को किस तरीके से कांटेक्ट करना शुरू कर दे कि अपना एक लाइजन बना सके। ये हम लाइजनिंग बड़ी कम देखते हैं, जो कि विद द यूनिवर्सिटी ऑन ए प्रोफेशनल लेवल, तो मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे तो होती नहीं है। तो स्टूडेंट अगर खुद कोई लाइजनिंग करना चाहे हम्म। तो उसके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर आपसे कोई प्रोजेक्ट करवाना चाहे या कुछ करना चाहे, कुछ आप एडवाइस देंगे कि किस तरीके से ग्रेजुएट जो है, जो अपने फाइनल ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, उसको आप क्या एडवाइस देंगे कि आप जो है ना अपना स्ट्रक्चर बनाओ, ताकि बाय द टाइम यू आर ग्रेजुएट आपकी इतनी से इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत जान पे हो पहचान हो कि आप इजीली जो है वो एंटर कर सको, या क्या आप उसको स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए टू इजीली गेट अ जॉब। मैं वो बड़ा एक मजे का ना, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। बिल्कुल सर। एक्सपीरियंस ये है कि एक स्टूडेंट की ना मुझे बेसिकली इनवाइट आया कि जी मुझे लिंक्डइन पे ना आप एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, मैंने इग्नोर किया, एक दफा किया, दो दफा किया, तीन दफा किया, उसके मैसेजेस वगैरह है, खैर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने मुझे खैर थैंक यू किया, उसने कहा जी थैंक यू कि आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, आपने मेरा इनवाइट। तो मैंने कहा जी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने कहा आप बताओ क्या कर रहे हो। कहते जी मैं एलएससी में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ना मेरा बड़ा वो, मुझे ये बड़ा फेंटिसाइज करती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये क्यों फेंटिसाइज करती है। वो कहते फेंटिसाइज मुझे इसलिए करती है क्योंकि ये इस वक्त जो है ना, इट्स अ वेरी लार्ज स्केल मार्केट, और ये बहुत, यानी कि लार्ज स्केल पे चल रही है, इट इज गोइंग, और इसमें डिमांड भी बहुत है। तो मैंने कहा कि हाउ डिड यू थिंक, हाउ डिड यू कम अप कि जी आप कोई लिंक करें या लिंक्डइन पे आप आए। कहते हैं जी आपसे पहले मैंने ना तकरीबन कोई 8-10 लोगों को मैंने इनवाइट भेजा लिंक्डइन पे। क्योंकि मैं, वो कहता है कि जी मेरे ख्याल में लिंक्डइन इज द मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्स, कि आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या इंडस्ट्री सीनियर्स या आप जो इंडस्ट्री के गुरुज हैं आप उनके साथ आप कनेक्ट करें, और आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो मैंने बहुत सारे पेजेस जो हैं वो भी लाइक किए। मैंने कहा उनकी तरफ से आपको इनवाइट नहीं मिला। कहते नहीं, मेरा इनवाइट नहीं मिला। तो मैंने कहा कि यू नेवर गिव अप। कहते गिव अप नहीं करना। कहते जब गिव अप कर दिया तो फिर पीछे कुछ भी नहीं रह गया। तो मैंने जितने वहां पे सीनियर मैनेजर्स थे मैंने सबको इनवाइट भेजा, तो यू एक्सेप्टेड माई इनवाइट। तो दिस इज द थिंग, आपकी सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल है। एवरी इंडस्ट्री, एवरी फैक्ट्री, जो भी काम हो रहा है वो सब डिजिटली अवेलेबल है। लिंक्डइन इज द मोस्ट प्रोफेशनल रिसोर्स के जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो एक ग्रेजुएशन कर रहा था, ही वाज इन लास्ट सेमेस्टर, एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग जी मैंने इंफॉर्मेशन किस तरह गैदर करनी है। उसने गैदर किस तरह की कि ही स्टार्टेड सेंडिंग इनवाइट्स टू द पीपल कि जी मुझे कहीं ना कहीं से कोई इनवाइट एक्सेप्ट होता है तो आई विल बी एबल टू ग्रैब सम इंफॉर्मेशन या ग्रैब सम कंटेंट, जिसके थ्रू मैं फिर आगे अपना कैपिटलाइज कर सकूं। जो मैंने, मेरा ऑब्जेक्टिव है टू मूव इनटू ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। और जब वो एक्सेप्ट हो जाते हैं तो एक्सेप्ट करने के बाद ये है कि आप गाइडेंस भी ले सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं,
लिंक्डइन के ऊपर ही आपके बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती हैं। मैंने बहुत दफा इंफॉर्मेशन जो है ऑफ मेनी कंपनीज वो लिंक्डइन से ली है। और इस वक्त जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट आपके जो जेवीज होते हैं, आपके आप कह लें कि कोई नया प्लांट डेवलप हो रहा है, कोई चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो अवेलेबल होती हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो ये चीज है। और उसके अलावा आपका बिजनेस रिकॉर्डर है। बिजनेस रिकॉर्डर मेरे ख्याल में हर ग्रेजुएट के लिए जो ग्रेजुएशन में लास्ट सेमेस्टर में है, ये बल्कि मैं तो कहता हूँ कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ ग्रेजुएशन आप अखबार पढ़ना शुरू करें। देखिए, अखबार जो पढ़ना है ना, बिजनेस रिकॉर्डर तो एक डिफरेंट चीज है। बिजनेस रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर क्या है कि बिजनेस रिकॉर्डर जो वो आपको इनसाइट दे रहा है ऑफ द बिजनेस मार्केट। अखबार वैसे पढ़ना बहुत जरूरी है। वो पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने जब भी किसी महफिल में जाके बैठना है, यू सिटिंग इन एनी, आप किसी भी कम्युनिटी में जाके बैठते हैं, वहां पे 8-10 लोग बैठे हुए हैं, कोई बंदा क्रिकेट की बात कर रहा है, कोई बंदा सियासत की बात कर रहा है, कोई बंदा इंडस्ट्री की बात कर रहा है, कोई बंदा कोई बात कर रहा है, तो आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है दैट शुड बी हैंड्स ऑन, ताकि यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट। जब आप एक गुफ्तगू का पार्ट बनेंगे, यू विल बिकम एन एक्टिव पार्ट ऑफ ए डिस्कशन, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और लोग भी आपको सुनेंगे, कि लोग भी आपको दे विल टेक यू, स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली, कि जी यू मीन बिजनेस, आपको इन्फॉर्मेशन का पता है। क्योंकि आप इस चीज सारी इन्फॉर्मेशन है, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उतने आप सक्सेसफुल है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। ये है सारी चीज। नहीं सर, ग्रेट एडवाइस। ये अखबार वाली चीज जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि जो है अखबार पहले तो आपका वेंडर आके देते थे, लेकिन अब जो जिसे क्या कहते हैं, हॉकर्स जिसे कहते हैं हम, लेकिन अब तो आपको ई अखबार जो है वो सारे जंग के इसके आसानी से यू कैन स्पेंड अबाउट 10-20 मिनट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, और आपको जो है वो एक थोड़ा सा समरी आसानी से मिल जाती है, तो आपको जो है इतना कोई इतना मसला नहीं है। आप सोशल मीडिया चैनल से निकले, प्रॉपर अखबार पढ़ें। बहुत सारे अगर इस चीज को ऐसे लेंगे कि हम न्यूज तो पढ़ते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया पे न्यूज आ रही होती है, लेकिन न्यूज पढ़ना और अखबार से नॉलेज ग्रैब्स करना इंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स हैं। बिल्कुल एग्रीड सर। अच्छा सर, ये हमने ग्रेजुएट्स का कर लिया, स्टूडेंट्स का कर लिया। एक छोटी सी एडवाइस, आप जो बिल्कुल यंग लड़के हैं ना, ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले, उनके लिए कोई है एडवाइस? पे देन विल मूव टू अनदर पोर्शन, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वीलॉग्स दैट यू आर मेकिंग। तो ओ लेवल ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई है एडवाइस आपकी, कि वो किस तरीके से अपना जो है स्ट्रक्चर बना के? यार ओ एंड ए लेवल्स में ये है कि या उस 9-10, लेवल पे ना, 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ओ लेवल ए लेवल्स, ये मैंने क्लियर कर बिल्कुल दूं ताकि जो है। उस वक्त यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। एक तो चीज ये है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एट व्हाट यू आर डूइंग। आप एजुकेशन ले रहे हो, आप एजुकेशन लो, लेकिन उसमें ये है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें आपने देखना है कि आपका जो आप कह लें कि जी आपका जो इंक्लिनेशन है वो किस तरफ है। इंक्लिनेशन का मतलब ये है कि इफ यू लाइक आर्ट्स देन यू हैव टू फॉलो आर्ट्स। अगर आपको इकोनॉमिक्स पसंद है आप इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं, अगर आपको मैथ्स पसंद है आप मैथ्स की तरफ जाएं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपने डॉक्टर ही बनना है या आपने इंजीनियर ही बनना है। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फील्ड्स। बैंकिंग है, इकोनॉमिक्स है। अब आप सिर्फ एमबीए में देख लें कि एमबीए में देर वाज अ जार्गन, या आप एक कह लो कि जी एक बहुत बेसिक चीज थी कि जी जब भी एमबीए होता था तो हर हर ग्रेजुएट एमबीए का मार्केटिंग सेल्स में करता था मेजर्स। मेरा भी मार्केटिंग सेल्स में ही है। लेकिन उसको किसी ने नहीं सोचा कि जी देर वुड बी अ टाइम व्हेन लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन, दिस वुड बी द बिग थिंग। क्योंकि अब इस वक्त ये है कि एवरीबॉडी सेलिंग द सेम थिंग ऑन द सेम प्राइस। तो अब प्राइस वॉर जो है वो किस तरफ चली गई है, वो रिवर्स इंटीग्रेशन पे चली गई है, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे चली गई है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मींस कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल को सोर्स करके कहाँ पे मूव कर रहे हैं, मूव करने के बाद आपकी जो फिनिशिंग कॉस्ट है वो क्या है, और आप जो बेसिकली उस प्रोडक्ट को मूव कर रहे हैं उसमें अभी क्या कॉस्ट लग रही है। क्योंकि अगर आपकी कोक की बोतल 200 की है, आपकी पेप्सी की बोतल 200 की है, आप वो चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेक इट 190, कि जब 190 करके जो है आप उसको उससे compete करें। अब compete आप किस तरह करेंगे, आप compete इस तरह करेंगे कि यू हैव टू हैव वेरी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स एंड सोर्सिंग, जिसके ऊपर आप काम करके अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। कॉस्ट को कम करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स आएंगे, या तो आप सेल्स बढ़ा लें या प्रॉफिट्स बढ़ा लें। तो ये जितने भी इस वक्त यंगस्टर्स हैं दे शुड बी कंसिस्टेंट, और सिर्फ ये देख लें कि जी हमारा जो दिमाग है ना बेसिकली वो किस चीज में चलता है। क्योंकि दिमाग जिसमें चलता है ना आपको वही करना चाहिए, विच यू लाइक डूइंग। अब अगर आपको कोई कहता है कि जी आपने डॉक्टर बनना है, आपको मैथ्स बहुत अच्छा है,
और आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी आपने डॉक्टर बनना है, और आप अपनी कोशिश लगा के आप अब मेडिकल पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आ रहा, तो दैट इज बेसिकली रूइनिंग यू। एग्री। और अब अगली जनरेशन जो वो भी ये समझती है, यानी कि अगर हमारी जो जनरेशन है, जिनके बच्चे अब इस वक्त आ रहे हैं फ्रॉम टू ओ लेवल्स, ए लेवल्स आ रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन ग्रेड्स में, दे अंडरस्टैंड दिस कि यार लेट इट बी, जिस तरह वो चल रहे हैं उनको चलने दें, और देखें कि वो कहाँ लेके जाते हैं चीजों को। अच्छा सर, हमने 9-10 की बात कर ली, ग्रेजुएट्स की बात कर ली, ग्रेजुएटिंग प्रोफेशनल्स की बात कर ली। होपफुली जो है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आपने दिया टू हाउ टू गो अबाउट ऑल ऑफ दीज स्टेजेस इन ए स्ट्रक्चर्ड वे, ताकि आपका जो पाथ है वो डिफाइन हो सके और आपको आपकी इंक्लिनेशंस और आपकी इंटरेस्ट भी थ्रू आउट पता चल सके। और किस तरीके से मैनेजमेंट के सामने आपने शाइन करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हटके के ऑयल और रिटेल सेल्स, पेट्रोल स्टेशंस और ऑयल का काम, मतलब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पैसेंजर कार मोटर ऑयल की और जो है डीजल इंजन ऑयल की, कि ये थोड़ा रिलेटिवली आसान है फॉर अ यंग पर्सन हु वांट टू वेंचर इनटू बिजनेस। तो अगर कोई ऑयल का काम करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, उसके पास कितना आपके ख्याल में बजट होना चाहिए टू स्टार्ट हिज ओन स्मॉल बिजनेस? मतलब कोई हाई फाई बिजनेस नहीं, लेकिन अगर एक स्मॉल सी शॉप खोलना चाहता है तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि कितना उसके पास फंड्स अवेलेबल होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी नॉलेज बेस कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए और किस हवाले से स्ट्रांग होनी चाहिए? तो और उसको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे? लेट्स सपोज अगर कोई ऑयल का काम करना चाह रहा है, तो क्या उसको एक ऑयल चेंज भी अपने साथ रखना जरूरी है, एक मैकेनिक भी अपने साथ रखना जरूरी है, या सिंपल एक शॉप वुड बी इनफ? तो इसके हवाले से थोड़ा सा आप एडवाइस दें जो कि ऑयल के हब में वेंचर इन करना चाह रहे हैं, ऑयल के काम में। इसमें एक्चुअली दो चीजें हैं कि जो ऑयल का काम करना चाह रहे हैं उसमें मेरा तो ये है कि आप सबसे पहले अगर आप काम करना चाह रहे हैं और अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले तो ये है कि आपने एक सर्वे करना है। सर्वे करने के लिए जरूरी ये है कि आप पहले जितने भी ऑयल चेंजेस हैं आपके हाई स्ट्रीट पे अवेलेबल हैं, पेट्रोल पंप पे अवेलेबल हैं, आप वहां पे जाएं और वहां पे जाके एक दफा उनका आप सर्वे करें। सर्वे करने से मुराद ये है कि जी कौन सा एरिया है जहाँ पे ऑयल चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं, ऑयल चेंजेस जो हैं वो कहाँ पे मोटरसाइकिल के ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे कार्स के ज्यादा हो रहे हैं। इसके ऊपर जो मार्जिन है, अगर आप बात करते हैं जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनके ऊपर क्या मार्जिन है, आपके जो गाड़ियों वाले हैं उनके ऊपर क्या मार्जिन है, उस मार्जिन के हिसाब से आपने अपनी वर्किंग देखनी है कि जी आपको एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट्स क्या मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम जो है दैट इज एन एडवांस्ड लेवल। एडवांस लेवल में ये है कि आप जिस भी कंपनी के पास जाएंगे तो वो आपसे एक हेफ्टी अमाउंट मांगेंगे, वो विच वॉन्ट बी लेस देन 5 to 6 मिलियन, कि वो कहेंगे इतना का आपने माल उठाना है, इतने का माल उठाने के बाद आपकी ये रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स आपने जो है वो पूरी करनी है। टॉकिंग अबाउट द जो आपके लार्ज स्केल ब्रांड हैं, जो टॉप ब्रांड्स हैं, उन टॉप ब्रांड्स के तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स जो हैं उनकी भरमार हुई हुई है मार्केट में। तो जिसने भी ये काम करना है उसके लिए, काम करने के लिए जरूरी ये है कि वो सबसे पहले जो है ना वो काम स्टार्ट करे। आप कह रहे हैं कि जी एक बहुत स्मॉलर स्केल के ऊपर, वो स्मॉलर स्केल क्या हो सकता है कि यू कैन ऑलवेज फाइंड अ पम्प। आप फ्यूल स्टेशन देखें किसी ऐसी जगह पे जो जगह डेवलप हो रही हो, जहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट हो रही हो रेजिडेंशियल कॉलोनीज की, तो कमर्शियल एक्टिविटी डेवलप हो रही हो, ताकि वहां पे आपको पता चले कि जी विद इन लाइक 5 मंथ 6 मंथ 7 मंथ्स तक मैं अपना इतना क्वांटम कर लूंगा लुब्रिकेंट का, कि उस लुब्रिकेंट के ऊपर मेरा कम से कम ये है कि खर्चा भी निकलना शुरू हो जाए और मेरा किचन भी चलना शुरू हो जाए। क्योंकि यही आपका बेसिक होता है कि जी आपका अगर किचन चलना शुरू हो गया है, आपके खर्चे पूरे हो गए, तो दिस इज द फर्स्ट अचीवमेंट जो आपने वहां से किसी भी बिजनेस से आपने ली। अगर आप बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, तो इंफॉर्मेशन आपको यही, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे देंगे जो आपके हाई स्ट्रीट में और जो आपके लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी ऑयल चेंज चला रहे हैं और पेट्रोल पंप्स। लेकिन इसमें भी ये चीज जरूरी होती है कि बहुत सारी चीजें आप कहते हैं ना कि ओल्ड स्कूल चल रही होती हैं। जिस तरह ओल्ड स्कूल में ये होता है कि जी वो कहते हैं कि जी जो पतला तेल है ये तो तेल अच्छा ही नहीं होता, या तेल जो है वो 4,000 या 4,500 चलना है, इससे ज्यादा चल ही नहीं सकता। अब तेल आ गए, इतने एडवांस तेल आ गए हैं जो तेल आपके 12-12 हजार 14-14 हजार किलोमीटर चलते हैं और उस तेल को कुछ नहीं होता। लेकिन इतना महंगा तेल खरीदने का फायदा क्या है अगर वो चलना ही 5,000 है, ये 4,500 है। हम डब्बा ले लेते हैं 9-9 हजार 10-10 हजार का, और उसको 5,000 किलोमीटर के बाद चेंज करा लेते हैं। और उसमें मिस्त्री कहता क्या है, मिस्त्री कहता है कि जी यहाँ पे ना इन्वायरमेंट ऐसा है, मिट्टी बहुत है। यार अगर यहाँ पे मिट्टी है तो हम अगर सऊदीया की बात करें, हम कतर की बात करें, हम ओमान की बात करें, वो तो है ही सारा रेगिस्तान। तो उनके तो फिर मेरा ख्याल है 5,000 के, उनके तो 2-3 हजार भी नहीं चलने चाहिए।
तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जी हमारा ये तेल है, जिस कंपनी का ये तेल है वो कंपनी इस तेल के बारे में क्या कहती है, ये तेल कितना चल सकता है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं। आपको पता है कि जो भी ऑयल कंपनीज हैं उन सब ने सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं फ्रॉम द ऑयल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स। मिट्सुबिशी की होती हैं, मर्सिडीज बेंज की होती हैं, फोर्ड की हैं, फरारी की हैं। ये जितनी भी कंपनीज हैं, आपकी कैलटेक्स है, आप टोटल की बात करते हैं, शेल की बात करते हैं, जिक की बात करते हैं, वेल्वो लाइनकिक्स है, इन सब ने जो है वो अपनी सर्टिफिकेशंस ली हुई है। तो यू शुड हैव अ इंफॉर्मेशन ऑन सर्टिफिकेशंस एज वेल, कि इनकी सर्टिफिकेशंस हैं क्या क्या। और ये एक तेल जो है इनका, अगर वो पीएमसीओ है या डीजल है, तो वो कितनी माइलेज तक जो है वो ये सर्टिफाई करते हैं कि जी इट्स गुड टू गो। उसके अलावा जो आपका जो मैन्युफैक्चरर है, उस मैन्युफैक्चरर के लिए भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके पास एक गाड़ी आती है 2016 मॉडल की या 17 मॉडल की, करोला है, होंडा है, हाइब्रिड है, उसमें भी आपने ये चीज देखनी होती है कि जी आपने गाड़ी में कौन सा तेल डलवाना है। और वो तेल जो है वो उनका जो मैन्युफैक्चरर होगा वो उसने स्पेसिफाई किया होगा कि जी कौन सा तेल इसके अंदर डलना है। हमारा तो होता है ना कि जी जी 1 साल पुरानी गाड़ी है, 0 20 0 30 डाल दो। ठीक है जी, महंगी गाड़ी है उसको 0 40 टका दो या 5 40 टका दो। ठीक है, क्योंकि जी वो नई गाड़ी है, ये जी बड़ा अच्छा तेल है, उसके अंदर मार्जिन भी अच्छे मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जी 4 साल पुरानी गाड़ी, 3 साल पुरानी गाड़ी है, बेशक वो 1.25 लाख 1.5 लाख चली हुई है, वो गाड़ी बिल्कुल ठीक है, उसका इंजन बिल्कुल ठीक है, इसमें जी 10 40 डाल दो। हालांकि बहुत सारी गाड़ियां जो 0 20 0 30 पे भी चल सकती हैं, लेकिन 10 40 डाल दो, ऐसी मोटा तेल डालते हैं हम गाड़ी के अंदर। तो हमें जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, हमें तो इस चीज की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हमने कौन सी गाड़ी में कितना तेल डालना है और कौन सी क्वांटिटी का डालना है और अपना कौन सी क्वालिटी का डालना है। हाइब्रिड कार्स का हमें अभी तक आइडिया नहीं हुआ कि हाइब्रिड कार्स जो हैं वो क्या है। हाइब्रिड कार्स ये है कि जब भी आपकी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी होती है, उसका इंजन बंद हो जाता है और वो बैटरी पे चल रही होती है, आप उसको दोबारा जब सिग्नल से लेके चलते हैं तो वो जो गाड़ी है वो दोबारा स्टार्ट होती है। तो तेल का काम क्या है? बेसिक काम ये है कि जितनी भी आपकी डैमेज हो रहा है अंदर फ्रॉम, जब भी गाड़ी जो है वो दोबारा स्टार्ट होती है, उसके अंदर कंबस्शन होती है, इंजन की वेयर एंड टेयर होती है, उसको करने के लिए तो जितना पतला तेल होगा हाइब्रिड कार के लिए उतना बेहतर है, ताकि वो हर वक्त जो है वो इन पिस्टन्स रहे, ताकि आपकी वेयर एंड टेयर कम रहे। हमारे मिस्त्रियों को इस चीज का पता ही नहीं है। तो ये बिजनेस बहुत ट्रिकी है। अगर आपको इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, बेसिक सर्वे करते हैं कि आपने ये कहाँ पे खोलना है, कहाँ पे आपको बिजनेस मिलेगा, कस्टमर को किस तरह आपने हैंडल करना है और कस्टमर को आपने क्या बेचना है। क्योंकि कस्टमर ने आपसे एक दफा चीज लेनी है, अगर वो मुतमईन हो गया, उसको माइलेज अच्छी मिल गई, उसको परफॉर्मेंस अच्छी मिल गई गाड़ी की, फिर वो कहीं नहीं जाता। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अंदर। जो आपने लास्ट बात की थी मिस्त्री की, मिस्त्री रखना बहुत जरूरी होता है। मिस्त्री रखने का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि एक बंदा है, पहले तो गाड़ियां थी 30 लाख की, 35 लाख की, 40 लाख की, अब तो गाड़ियां जो है वो 60 70 लाख पे पहुंच गई हैं। अगर कोई भी किसी भी वजह से कोई भी मेल फंक्शन हो जाता है गाड़ी के अंदर, बहुत दफा इस तरह हुआ है कि जब आपने नीचे से नट खोलना होता है इंजन का, वो नट लगाते हुए ही आप उसके अंदर चूड़ी फंसा देते हैं। तो वो जब चूड़ी फंस जाती है तो आपका नट भी जाता है और आपका जो इंजन का वो बेसिकली पूरा ड्रम है वो भी आपको निकाल के दोबारा उसको खरादी से दोबारा वो करवाना पड़ता है। तो इसमें ये चीज है कि इसमें आपका प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए जो इन चीजों को समझता हो, एहतियात से काम करे। जब एहतियात से काम करेगा फिर कस्टमर आपके पास आएगा, वरना आप फिर कहाँ से नुकसान बर्दाश्त कर देंगे इन चीजों का जो खराब हो जाती है। ये नहीं, चीज है। इट्स ग्रेट एडवाइस। और आपने अपनी एडवाइस में एक सोल्यूशन भी वो जो है रिकमेंड कर दिया कि यहाँ के लोगों को ये नहीं पता है कौन सा ऑयल कैसे रिकमेंड करना है। तो अगर ये कोई यंग प्रोफेशनल सुन रहा है और इस पे सर्वे और इस पे रिसर्च करता है कि राइट ऑयल फॉर द राइट कार, तो ऑब्वियसली जो है उसकी कस्टमर, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम द कस्टमर वो एक नेक्स्ट लेवल होगी। तो ये ग्रेट एडवाइस है सर। अच्छा, इसी हवाले से इसका जो दूसरा अपना क्या कहते हैं स्टेप है, वो पेट्रोल पंप्स है। तो पेट्रोल पंप्स के लिए जो है कितनी, अच्छा ऑयल के लिए बस एक आखिरी सवाल था, फिर हम पेट्रोल पंप्स पे आएंगे। ऑयल के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके ख्याल में कितनी होनी चाहिए? 0.5 मिलियन, 1 मिलियन? आपका काम बेसिक स्टार्ट, मतलब आपको लॉन्च पैड चाहिए खाली स्टार्ट होने के मेरा लिए? ख्याल है कि आपको 1.5 से 2 मिलियन तक आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक सेटअप डेवलप करना है। सेटअप में ये है कि सेटअप में बहुत सारे जो है वो लो स्केल सेटअप्स ही होते हैं कि यार आपने क्या किया, आपने 2 रैम बनवाए, रैम बनवा के आपने उनको अपने शॉप के सामने रख दिया, आपने कुछ भी नहीं किया अंदर, आपने वहां पे एक रैक लगा के आपने वहां पे जो है वो ऑयल डिस्प्ले कर दिया, तो आपके पास हाई एंड कस्टमर तो कभी भी नहीं आएगा। अगर आप किसी अच्छे हाई एंड किसी
लार्ज स्केल आप कह लें कि एफ्लुएंट एरिया में बैठे हुए हैं, तो आपने वहां पे आपने वेटिंग रूम भी देना अपना छोटा सा, वहां पे आपने एसी भी देना है, वहां पे बैठने की जगह भी देनी है, और आपने डिच देनी है। डिच का मतलब क्या है कि वहां पे आप वो जो ऑयल पिट है ना, आप वो आप जरूर आप डेवलप करें। वो डेवलप करने से होता है क्या है कि कस्टमर की ना थोड़ी तसल्ली रहती है वहां पे। अब देखिए वही मैं जिस तरह बात कर रहा था कि इतनी महंगी गाड़ी है, मैं अब उसको रैंप के ऊपर चढ़ा रहा हूँ, कहीं पे भी रैंप अगर जो है वो थोड़ा सा रिस्की, बहुत रिस्की काम है, अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मेरी गाड़ी जो है वो वहां से डिसबैलेंस हो गई, तो वो आप कह लेंगे जी वो अच्छा खासा यानी कि तकरीबन हजारों का खर्चा होता है। तो अव्वल तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा जहां पे रैम्प्स होंगे। मैंने तो आज तक कहीं पे ऑयल चेंज नहीं करवाया जहां पे रैम्प्स हो। ऑयल पिट्स होती हैं आपकी, आपको पता है कि जी एक बंदा आपको गाइड कर रहा है, आप आराम से जाएं, ऑयल पिट के ऊपर गाड़ी खड़ी करें, आपको ऑयल ड्रेन होगा, ड्रेन होने के बाद आपको ऑयल चेंज होगा, फिल्टर चेंज होगा, और आप इजीली वहां से आ जाएंगे। तो एक सेटिस्फेक्शन होती है। तो इन चीजों में कंस्ट्रक्शन में आपने उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने उसकी डेवलपमेंट करनी है, आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी हैं, तो आई थिंक कि 1.5 to 2 मिलियन जो है वो आपको स्टार्टिंग जो है वो आपको बजट इसकी जरूरत होगी। चलें सही सर। अच्छा, अब हम ट्रांजिशन करते हैं इस पे पेट्रोल पंप्स, अगर कोई उसमें वेंचर इन करना चाह रहा है तो रिलेटिवली मेरे ख्याल से अब बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि द प्राइसेस ऑफ ऑयल और जो पेट्रोल हैं या मोटर फ्यूल है वो काफ़ी स्पाइक कर गई हैं। तो इसमें जो है वेंचर करना कितना आसान और कितना मुश्किल है, और क्या क्या स्ट्रेटजीज अगर किसी के पास, और क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें वेंचर इन करने के लिए होनी चाहिए? इसमें एक्चुअली अगर हम देखें, क्योंकि हमारा रोज का काम है ये, तो ये तो अब चली गई है बात मिलियंस के अंदर। आप कहने लगे जी मिलियंस में क्या है जी, कि अगर आप बात करते हैं अगर आप जमीन की सिर्फ बात करते हैं तो जमीन के जो सिर्फ मरलों की आप बात कर रहे हैं, तो मरले जो है वो मिलियंस में चले गए हैं कि जी 10-10 12-12 लाख का तो मरला है। आपकी करोड़ों के अंदर जमीन आ जाती है, फिर उसके बाद आपकी इतनी ही इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी अप्रूवल्स में आ जाती है। कमर्शलाइजेशन की आप बात करते हैं, जो गवर्नमेंट फीसेज मिलियंस में चली गई हैं, तो वो आपका जो एक प्रोजेक्ट होता है ना, वो प्रोजेक्ट आपका चला जाता है अराउंड आप कह लें कि जी 12 to 13 मिलियन तक। 12 to 13 मिलियन का मतलब क्या है? 12 to 13 मिलियन का मतलब ये है कि जी ये आपका बन जाता है तकरीबन, आप कह रहे हैं बल्कि 12 to 13 मिलियन नहीं, बल्कि ज्यादा हो जाता है। इट गोज अराउंड 18 to 20 मिलियन, यानी कि आप अगर बात करते हैं तो ये 2.5 से 3 करोड़ रुपया तो सिर्फ इसकी यानी कि जमीन के अलावा अलावा इसकी कॉस्ट आ जाती है। फिर अगर आप फ्यूल की बात करते हैं तो फ्यूल की जो कॉस्ट चली गई है, अगर आप इस वक्त 8,000 लीटर की बात करते हैं, तो 8,000 लीटर जो फ्यूल है उसकी जो कॉस्ट है दैट इज अराउंड 2.5 मिलियन, एग्जैक्टली। जो आज से तकरीबन साल पहले जो थी विच वॉज अराउंड 1.2 1.3 मिलियन। तो अगर इसके अंदर आप वेंचरिंग करना चाह रहे हैं तो इसमें मेरा सिर्फ ये है यानी कि मैं जो दे सकता हूँ एडवाइस वो ये है कि आपके बहुत सारे फ्यूल स्टेशन हैं, वो फ्यूल स्टेशन जो हैं वो आप कह लेंगे जी अनअटेंटिव पड़े हुए हैं, या लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है, या उसका जो डीलर है वो एब्सेंटी है। तो आप इन फ्यूल स्टेशन को आइडेंटिफाई करके इन फ्यूल स्टेशन को आप जो बने हुए हैं, ताकि आपको वहां पे सिर्फ कैपिटल कॉस्ट डालनी पड़े, और कैपिटल कॉस्ट करके आप डाल के वहां पे उसको चलाना शुरू कर दें। बट उसमें भी ये चीज है कि आपने उसका भी बाकायदा सर्वे करवाना है कि जी व्हाट इज द ट्रैफिक काउंट ओवर देयर, वहां पे डेमोग्राफिक्स क्या है, कमर्शियल एक्टिविटी क्या है, कौन सी ट्रैफिक मूव हो रही है, क्या सेल हो रही थी पहले उसकी, और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्योंकि इस तरह के जो आप कह लेंगे अबंडेंट पंप्स होते हैं जहां पे डीलर एब्सेंटी होता है, या जहां पे जो पंप्स नहीं चल रहे होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी भी वैसी ही खराब हो चुकी होती है। तो अगर आप वेंचरिंग करना चाहते हैं तो वेंचरिंग में सिर्फ अब यही चीज एक रहेगी, ये कि जी आपके जो आपकी ये आप कह लेंगे जी आपके जो स्मॉलर टाउन्स हैं, पंजाब की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, उसमें अगर कोई आपको इस तरह का स्टेशन मिल जाता है जो आपको किराए के ऊपर मिल जाए, और आप अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, तो इस तरह की ऑप्शंस हैं अवेलेबल, जहां पे आप थोड़ा सा कैपिटल पुट इन करके आप वहां पे अपना ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, और कंपनीज भी आपको उसमें सपोर्ट करती हैं। क्योंकि कंपनीज भी ये देख रही होती हैं कि जी हमें अगर कोई अच्छा वेंडर मिल जाता है, अच्छा फ्रेंचाइजी मिल जाता है, ऑपरेटर टू रन द बिजनेस, तो व्हाई नॉट। तो लेकिन ये है कि इसके अंदर कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है इस चीज के अंदर। ये जो आपने किराए पे स्टेशन लेने की बात करी, इसमें इनिशियल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए एटलीस्ट? मतलब वो तो आप ले गए 20-25 मिलियन तक, लेकिन अगर आप जैसे हम्म। किराए पे ले रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए? उसमें तो यही है कि आगे पास तकरीबन आपने वो उसको कोई सिक्योरिटी भी देनी है लैंड ओनर को, आपने आपने उसको किराया भी देना होगा। किराया देने के अलावा फिर ये है कि आपने उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट भी पुट इन करनी है, कैपिटल भी होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर भी आपका बस सपोजिटली आपको मेरा ख्याल है 7 to 8 मिलियन तो इसके अंदर भी आपका लग जाएगा मिनिमम। और इसकी क्योंकि आप कुछ उसको थोड़ा
सीधा पदरा करेंगे, आप उसी को थोड़ा सा आप उस यानी कि ये उसको क्लीन अप करेंगे, कुछ रेनोवेट करेंगे, कुछ रिमॉडल करेंगे, उसको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि आप स्टाफ जो है उसको इंजेक्ट करेंगे। कुछ आपने सिक्योरिटी है, रेंटल है, वो आपने लैंड ओनर को भी देना होगा जो प्रिंसिपल ओनर है। तो इतनी कॉस्ट जो है वो इसके अंदर आपको लग जाएगी अगर आप बहुत बेसिक से भी शुरू करते हैं काम। अच्छा, और इसका रिटर्न आपके ख्याल में कब तक आता है? क्योंकि ऑयल का तो मैं समझ रहा हूँ 1.5 से 2 मिलियन है, तो 1 साल 1.5 साल में आपको रिटर्न आ जाएगा, फिर आप जो है प्रॉफिट में चले जाएंगे। इस पेट्रोल स्टेशन का क्या वो है? पेट्रोल स्टेशन का तो ज्यादा होता है। पेट्रोल स्टेशन में आपको पता है कि जी आपकी जो कॉस्ट है पर लीटर दैट इज 300, और मार्जिन उसके ऊपर 7 रुपीज है फॉर द डीलर। एग्जैक्टली। और 7 रुपीज में भी आपको बचते कितने हैं? अगर आप निकालें आपको 3 साढ़े 3 रुपए बच रहे होते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस कि जी आप सिटी के अंदर बैठे हुए हैं, डीलर में सेलिंग ह्यूज वॉल्यूम्स, लाइक आप 10,000 बेच रहे हैं, 15,000 बेच रहे हैं लीटर, उस वक्त तक तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 1.5 2 साल से पहले इसका जो है वो आप रिटर्न ले सकें। चलें सर, ग्रेट एडवाइस ऑन ऑल फोरम्स फॉर जॉब्स फॉर बिजनेसेस एंड एवरीथिंग। अब इंशाल्लाह हम इसको कंक्लूड करते हैं। आपने अपना पूरा जर्नी बताई, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड एंड बी कंसिस्टेंट। मतलब आपने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करी, फिर एमबीए करा, फिर एमबीए के बाद आपने एक ही जॉब में रहते हुए 5 से 6 रोल स्विच किए, अपना पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया। नाउ यू आर हेडिंग 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स माशाल्लाह से। और उसके हवाले से आपने अपना पूरा जर्नी और स्ट्रक्चर डिफाइन किया, जिससे जो भी सुन रहा होगा वो एक अच्छी इंसाइट लेगा, जो लेना चाहे। तो आप कुछ सर इसको समराइज करना चाहेंगे, फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। कोई एक लाइनर एडवाइस या एक सिंपल एडवाइस जो कि ग्रैस्प करके यंग लड़का या लड़की जो है वो आगे चल सके। बहुत सिंपल सी चीज है कि जस्ट बी कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंसी के अलावा ये है कि लर्न जितना आप लर्न कर सकते हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम एनीबॉडी। लर्निंग में आप सीनियर से भी लर्न कर सकते हैं, आप अपने पीएस से भी लर्न कर सकते हैं, आप जूनियर से भी लर्न कर सकते हैं। तो नेवर शट डाउन एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। हमेशा लर्न करें, हर बंदे से लर्न करें, रिस्पेक्ट करें। जो भी बंदा जिसका भी कोई पर्सपेक्टिव है उसको जो है वो आप रिस्पेक्ट दें। आप बेशक उसके साथ डिसएग्री करें, लेकिन उसमें ये है कि डिसएग्रीमेंट शुड नॉट गो इनटू डेडलॉक्स। और मैं एडवाइस सारों को करता हूँ वो ये है कि रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। आप जितनी रिस्पेक्ट देंगे, आप जितना हम्बल होंगे, आप उतना ही कामयाब होंगे, क्योंकि हम्बल बिगिनिंग्स लीड टू ग्रेट डेस्टिनेशंस। मेरा यही ख्याल है। यू हैव टू बी वेरी हम्बल। नहीं सर, ग्रेट एडवाइस। बी हम्बल, बी कंसिस्टेंट एंड एंजॉय द जर्नी। पर इंशाल्लाह हम इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम सर, सबसे पहले। और फिर इंशाल्लाह जो है मैं उम्मीद करूंगा आपके पास फिर टाइम निकलता है तो वी कैन हैव एन इंटरैक्टिव सेशन लाइक दिस अगेन सर। चले, थैंक श्योर यू। श्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबडी। और फिर मेरी तरफ से और इत्तेज़ाज़ साहब की तरफ से अल्लाह हाफिज।